So a couple of years ago, I was in conversation with Leander Pace while one of his documentaries had released. बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझसे कही थी जो मैंने जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा. He told me that many years ago when he had teamed up with Mahesh Bhupati as a co-player in the mixed doubles tennis game, he said it's not just talent that wins Grand Slams, it's also attitude that wins Grand Slams. Wow. And we must do this chest thumping and show some aggression on field when we hit it hard to show the opponent who is the boss in the room. That stayed with me. I think tonight I'm reminded of that क्योंकि मेरे साथ सिद्धांत है. I quite like his attitude and I want to talk more about that. And men in their 30s and a career in movies and how do you crack it in movies and lots more. Hi Siddhant, how are you? Wow, that'll stay with me for life. Yeah, it did with me too, है ना? Yeah. I'm just a starry-eyed kid with big dreams trying to chase for another galaxy maybe, I don't know. I'm just going out, trying different things, putting myself every time in new shoes, you know, taking up challenges, evolving as a person, as an actor. For me, it's a whole. I don't only think about my success as my career. It has to be beyond that. It has to be more than that. And that's what I try to do in everything I choose. I want to surprise myself and the audience. जो इंटरनेट कहता है आपके बारे में वो ये है कि इनसाइड एज से आपने शुरुआत की. Your parents moved from UP to Mumbai many years ago. You're a guy from Bombay. Yeah. And that's it. Where does the gravity come from in your personality? Where? That's so hard to answer. That's like, you've asked a very deep question. I'll have to dive down deep into, I don't know, where does this gravity and passion come from? It's this mad belief in chasing for the stars, and stars, with stars I don't mean stardom or anything, for something which is beyond of what or where I've come from. I want to see life. I want to be rich not because I want money. I want to be rich because I want to hang out with the most amazing people in the world. I want to hang out with Elon Musk, Mark Zuckerberg, all these tech giants, all these businessmen. I want to be in the same room, you know. When the world is almost ending, there should be a flight of 20-seater and I should have a seat for me, and I should have 3 seats for my family. So when you say ki in the beginning years didn't see a good time, which time are you talking about? Your childhood or before the migration? What? Before the migration, I was a happy child. गांव में एक गाय थी, बाबा थे. Everything was perfect. Dad was, you know, trying to earn a living here, and my mom was there. So I stayed without my dad for the first 5 years of my life. I didn't know what my dad looks like. He used to only send me toys. But I was very happy with my grandparents and my mom there. And then when we moved from there to here in a small 1 BHK rented house, that was because that, it used to be open. I was a child of open fields, right? Suddenly I was just in a small apartment there. That shook me a lot. Also, आप खेतों के बीच रहते थे? हाँ, खेतों के बीच रहता था. तो ओपन फील्ड्स और अलग ही माहौल था वहाँ पे. क्या कौन था? फार्मर था कोई आपकी फैमिली में? फार्मर हमारा खेत नहीं था. खेत थे. मेरे दादाजी पंडित थे. राइट. खेत नहीं थे. मेरे दादाजी पंडित थे, तो वो खेत तो होते थे लोगों के, ठाकुरों के खेत होते थे, पाठकों के खेत होते थे. हम तो पंडित के घर के थे, तो पूजा पाठ और यहाँ वहाँ जाना, घरों में पूजा करते थे, शादियों में पूजा करते थे, तो उनके साथ मैं उनकी उंगली पकड़ के चले जाता था. और रामलीला होती थी तो रामलीला देखने चले जाता था. और जन्माष्टमी में मुझे कृष्ण भगवान की तरह पहना के वो पूरे गांव में घुमाते थे. तो ये सब कहानियाँ थी. उसके बाद सडनली जब यहाँ पे आया, ये लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंगों को देख के कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब गया मैं, मुझे लगता है. समझ नहीं आ रहा था कि छोटे से घर में जाऊँ कहाँ, खेलूँ कहाँ, तीर धनुष कहाँ चलाऊँ मैं. बाबा नहीं है यहाँ पे, गाय नहीं है यहाँ पे. बाबा मतलब आपके दादाजी. हाँ. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं थोड़ा सा हिल गया था. और फिर धीरे धीरे वो एक संघर्ष था, और मैंने देखा अपने मम्मी पापा को कैसे उन्होंने, you know, the way they have the hardships which they have gone through to raise me. And yeah, and then I knew I had to be the best. I knew that we left home for a reason, so I need to like
own it. You know, I have to like do something which makes that worth, you know, everything. तो यूपी में कहावत है, आपने सुनी है, सबसे अक्लमंद द्विवेदी जी, उनसे ज़्यादा अक्लमंद त्रिवेदी जी, उनसे ज़्यादा अक्लमंद चतुर्वेदी जी, और उनसे भी ऊपर होते हैं सिद्धार्थ। अब इनके नाम में सिद्धांत भी है और चतुर्वेदी भी है, तो सोचिए कितने अक्लमंद होंगे ये। यूपी में इसको कहते हैं 20 खोपड़ा, 20 खोपड़ा है आम। अच्छा, अरे वाह, ये बड़ी अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये तो आपके ऑन स्क्रीन इमेज से मैच नहीं करती। हाँ, कोई भी मैंने फिल्में सारी अर्बन किस्म की है ना, तो मैच नहीं की। अब कोशिश थी बंटी बबली में वो थोड़ा देसी, थोड़ा ठेठ। अब देखते हैं आगे जो नेक्स्ट एक्शन धड़क है वो काफ़ी रूटेड कहानी है। काफ़ी अर्बन फिल्में कर ली हैं, लोग शायद जानते नहीं है, कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी बॉय टाइप का किस्म का इमेज है मेरा, खो गया का कूल किड बैंड्रा से आता हुआ। नहीं, काफ़ी देसी हूँ मैं दिल से। अभी उस किस्म की फिल्में हैं, आने वाली हैं और मिलेंगी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आई होप कि ऐसी कुछ कमाल की फिल्में मिले जिसमें आप ट्यूबवेल में नहाते हो। ट्यूबवेल में नहाऊं मैं, थोड़ा बारातों में नाचूं मैं, थोड़े से ठुमके लगाऊं मैं। बहुत मन होता है केसारी लाल को देख के पवन सिंह जी को देख के बड़ा मन होता है। हाँ। लेकिन है वो समय है, वो भी अभी फिलहाल जो भी फिल्में आ रही हैं वो भी कमाल की हैं। मतलब एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। एक टाइप का एक वो डिमेंशन में फिट नहीं होना, एक बक्से में फिट नहीं होना, तो हर किस्म का रोल करना है। और वही आई थिंक एक एक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप कुछ भी बन सकते हो, कोई भी बन सकते हो। और थैंकफुली आई हैव, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। मेरे पास एक रूटेड देसी वो भी है और एक अर्बन, बिकॉज यहाँ पला बड़ा हूँ तो एक अर्बन नेस भी है। तो दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करते करते आगे देखते हैं लाइफ में। So how did you get Yudhra? So it was the first film which I signed after Gully Boy, because there was an ideation which was happening, and sir was talking about it, Ritesh sir, and I'd met him after Gully Boy was a huge success, and अब था बात ये थी कि आगे क्या करना है। तो जब उन्होंने इसके बारे में बताया, मैं बोला सर मैं एक्शन मैंने बहुत समय से ट्रेन किया है, मैंने, आप देख लीजिए कुछ वीडियोस हैं मेरे पास। उसी समय ये फिल्म आई थिंक श्रीधर सर और फरहान सर इस पे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा सर ये अगर मुझे मौका देंगे मैं पूरी तरह से खरा उतरूँगा इस पर। ये देखिए मैंने एक्शन, और मेरे पास वीडियोस थे बहुत पुराने मेरे स्ट्रगलिंग डेज़ के, जिसमें मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के फ्लिप्स कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, ताइक्वांडो कर रहा हूँ, पार्कौर कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सर एक बार ट्राई कर लीजिए। सो देन आई मेट रवि सर, एंड रवि सर ऑल्सो हैड सीन गली बॉय, सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट if anybody can pull this off, he can pull this off, because he had seen that alpha, you know, he's seen that angst in me, and this character required a lot of angst and a lot of like attitude, as you say. So then yeah, we signed it on, and then obviously the pandemic happened, और this was a very big budget film, काफ़ी बड़े स्तर की फिल्म थी ये, तो क्रू इंटरनेशनल था, कोरियोग्राफर्स, एक्शन डायरेक्टर्स इंटरनेशनल थे, तो हमें 2 साल रुकना पड़ा। उस बीच में गहराइयाँ, बंटी बबली, फ़ोन बूथ कराया। और वो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एज एन एक्शन स्टार और एक्शन हीरो आपको एक एक्विटी चाहिए होती है, तो मैं थोड़ी सी बटोर लाया। क्योंकि बिफोर दिस वन बिग ब्लो ऑफ यू नो दिस फिल्म, आई नीडेड सम kind of confidence in myself as well. So then yeah, this is now fully ready and cooked, and it's made with blood, sweat, and a lot of passion. You're a man in your probably early 30s. Yeah. How does a man who is in his early 30s, who is on his mobile phone all the time, whose life is almost driven by social media, his purchases to his romantic, the idea of romance, to his idea of settlement in terms of marriage or things like that, relationships, his career, everything is like very new age, 2024. What's a 30-year-old man in a metropolitan city thinking about relationships and career? You know, I think जो हमारा जनरेशन है ना, जो 30s में लेट 20s या 30s में, कहीं ना कहीं वो बट गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमने वो एरा भी देखा है जहाँ पे कंचों से खेला है, मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, खेलने जाते थे नीचे, टीवी 1 घंटे देखने को मिलता था। और वो जनरेशन भी देखा है जब कॉलेज में आ गया था, फेसबुक सामने आया, इंस्टाग्राम सामने आया, और हम कहीं ना कहीं बट गए। हमें लगता है कि हमारा स्पेशली ये वाला जो आई थिंक ये 5 साल है ना, जो भी आज के दौर में 25 से लेकर आई थिंक 35 तक जो भी लोग होंगे, वो दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मायने बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं अभी। और
हम दोनों को दोनों दुनिया पता है और सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट हम ही को करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे माँ बाप भी हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती हाँ। बट हमारे छोटे भाई बहन भी हैं जो वही चीज़ें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बीच में वो बैलेंसिंग फैक्टर बन गया और रिलेशनशिप में भी वही हो गया एक्सपेक्टेशंस हमारी है और 90s की शाहरुख सर वाली और जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी के बीच में कहीं ना कहीं ये जनरेशन मुझे लगता है बहुत कमाल की तरफ बट गया है लेकिन इसी वजह से आई थिंक सबसे ज़्यादा इवॉल्व भी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझ पा रहा है ये मम्मी को भी समझ पा रहा है ये गर्लफ्रेंड को भी समझ पा रहा है। गर्लफ्रेंड को भी समझ पा रहा है तो ये है ये तो कहीं हम बट गए मुझे लगता है ये हमारे आगे वाले सॉर्टेड हैं हमारे पीछे वाले को मतलब ही नहीं हम ही हैं जो दोनों एक जगलिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ और कमाल का ये दौर है मुझे लगता है ये कि दोनों चीज़ें देखी हैं Where do you see the world of relationships and marriages going? I'm just asking a 30-year-old guy. सी मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरे मम्मी पापा है Okay. वो अभी तक साथ में हैं अभी तक एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते लेकिन बस डर यही है कि वो रेफरेंस पॉइंट ही ना रह जाए बस ज़िंदगी में उसके आगे वो एक्चुअल में रियलिटी कभी ना बने वो डर मुझे भी सताता है कि अगर ऐसा क्या वो वाला प्यार होगा क्या मैं वैसा पति या ऐसा पिता बन पाऊंगा अपने बेटों के लिए कभी या अपने बच्चों के लिए क्योंकि ये रिलेशनशिप्स और ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो मेरे तो समझ के मुझे नहीं समझ में आती हाँ, हमें भी नहीं समझ मुझे में भी आ नहीं रही समझ में आती कि इतना झटपट छुटकन पुटकन कैसे हो गया सब कुछ वो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जब प्यार है तो लोग लड़ते क्यों नहीं और लड़ते हैं तो सिर्फ एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं और जब लड़के बिछड़ते भी हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते भी हैं तो फिर पीछे मुड़ के स्टॉक क्यों कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और जब स्टॉक कर भी रहे हैं तो फिर से क्यों नहीं मिलने आ जाते और जब फिर से मिलने आते हैं तो ऐसा क्यों जताते हैं कि यार नहीं मैं तो आई एम ऑल राइट आई एम फाइन तो ये चीज़ें नहीं समझ आती मुझे ये अभी भी मैं भी फिगर आउट ही कर रहा हूँ देखते हैं कि क्या होता है इससे और इस सब के बीच में यू प्ले युद्रा नाउ टेल मी इन सब के बीच में ये जो पूरा सोशल कल्चरल माहौल है सोशल मीडिया एंड सेंस ऑफ कंपटीशन नाउ यू हैव अ करियर वेयर यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट परफेक्शन and yourself and your objective. Yes. Now how you as Siddhant, how does one navigate life and career in this kind of a situation? देखिए मेरे लिए ना कभी करियर एक पहलू था मेरे लिए बिकॉज मेरे लिए हमेशा आइडिया ऑफ सक्सेस कभी सिर्फ करियर नहीं रहा है मेरे लिए फैमिली फ्रेंड्स एक 360 डिग्री अप्रोच हमेशा से रहा है एटलीस्ट जो मुझे सिखाया गया है कि यार ज़िंदगी में 5,000 करोड़ रुपए भी बैंक में रखे हो लेकिन यार शांति होनी चाहिए लाइफ घर में शांति होनी चाहिए अपने जीवन में अपनी निजी ज़िंदगी में अपने दोस्तों में मज़ा आना चाहिए तो ये सारे पैसे सक्सेस का कोई मतलब नहीं है अगर वो नहीं है तो मैं आई हैव माई पेरेंट्स हैव रेज्ड मी इन अ वे दैट वी हैव प्रायोरिटाइज्ड यू नो शांति और पीस और हैप्पीनेस छोटी चीज़ों में काम बाय डिफ़ॉल्ट मैं जस्ट बिकॉज वहाँ से आता हूँ तो वो मेहनत हमेशा रहेगी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बढ़ते हुए देखा है तो एक कॉन्फिडेंस है तो मेहनत तो बाय डिफ़ॉल्ट है पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही टाइम उसमें हम लगा दें अपने फैमिली को ध्यान ना दें अपने दोस्तों में ध्यान ना दें ऑब्सेस्ड हो जाएं कि मैं स्टारडम से या इस करियर से ऑब्सेस्ड हो जाएं मुझे नहीं लगता वो सही है और मैंने कभी किया भी नहीं मुझसे होगा भी नहीं वो क्योंकि मेरे लिए 14 घंटे 20 घंटे भी काम करूं लेकिन मुझे घर जाना है और मुझे चाहिए कि कोई घर में हो कोई पूछे मम्मी जो किचन में बर्तन की खनखनाहट होती है चाहे पापा जो अखबार पलटते हैं उसकी जो आवाज़ें होती हैं ये मुझे चाहिए बहुत ज़रूरी लगता है क्योंकि फिर कोई पर्पस ही नहीं है ये सब करने का मुझे ऐसा लगता है क्योंकि काम तो चलता रहेगा काम तो अच्छा ही चलता रहेगा पिक्चरें भी हैं सारी चीज़ें हैं बट इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना कि खुद ही मैं मतलब खो दें ये सारी चीज़ें जैसा कि अभी मैं हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था आमिर सर ने कहा ये चीज़ कि मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था कि मैं कहीं शायद वो एंड ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स दैट कि वो चीज़ें वापस ना आ जाएं उससे भी मेरी आंखें खुली और मैंने कहा कि यार ये तो वैलिडेट कर रहे हैं जो मैं सोच रहा था तो शायद मैं सबसे बड़ा स्टार ना बन पाऊँ लेकिन मुझे सबसे अच्छा इंसान बन के रहना है और सबसे खुश रहना है और बाकी अगर भगवान ने लिखा होगा तो फिर बाकी आगे चीज़ें होती जाएंगी अपने आप और मौके मिलते जाएंगे बिकॉज यहाँ तक पहुँचा हूँ दुआओं की वजह से क्योंकि मैंने जेन्युइनली जो चीज़ें मोहब्बत की हैं जिन चीज़ों से या जिन लोगों से भी या लोगों का भी आदर
और जो आशीर्वाद मिला उसी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं. तो आई थिंक मैं कभी मैलिस नहीं था मेरे अंदर कि यार फेम दिस दैट यू नो आई वांट ऑल ऑफ दैट आई वांट टू लाइक. नहीं, शांति से अपना काम करते हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है.